ऑलराइट, तो कल हम लोगों ने डिस्पर्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किया था एंड इफ यू रिमेंबर करेक्टली वी हैव टेकन अ प्रिज्म समथिंग लाइक दिस, मतलब we have taken principal section of a prism basically. Okay, so then as I told you, we had white light initially, which is more or less incident over here. ये white light था. White light का मतलब it has all the wavelengths. Okay, it has all the wavelengths. All the wavelengths मतलब all the colors. अब अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो white light straight it should have went straight, but because there is prism, due to this prism the light will refract. Okay, और हर एक कलर का रिफ्रैक्शन अलग अलग एंगल से होगा. सो दिस इज रेड कलर, फिर वापस से दूसरे एंड पे वापस से रेड कलर विल रिफ्रैक्ट अगेन. सो द अमाउंट बाय विच डिफरेंट कलर्स विल बेंड इज डिफरेंट. येलो कलर का यू विल हैव मोर बेंडिंग as compared to red. Then you have violet, which is bending the most, something like this. Then I told you ये जो एंगल है, this angle between the original direction and the final direction is angle of deviation for violet, and for yellow this is the angle, that is angle of deviation for yellow, and this is angle of deviation for red color. तो हुआ क्या, when white light enters a prism, white light enters a prism, it gets split up into 7 components. Why? Because white light has all these colors. सिर्फ prism क्या करता है, प्रिज्म में हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाता है, इवन तो द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज सेम. मैंने कल भी बताया था. व्हाट वी नो इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू c by v इज इक्वल टू c by n लैम्बडा. मतलब बहुत सिंपल है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा रेड का, उसका स्पीड भी ज्यादा होगा प्रिज्म के अंदर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, राइट? So you need to understand that relation, and you should know that refractive index mu will be less than for red color, will be less than for yellow color, and will be less than for violet color. मतलब violet का refractive index सबसे ज़्यादा है, right? And as you can see, deviation for red color is the least, and the deviation of yellow color is greater than red, and deviation of violet color is maximum. What else we know is wavelength of red color is greater than for yellow color, is greater than for violet color. Also speed of light in for red color is greater than for yellow and is greater than for violet, right? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. Simple thing, extremely simple thing. Okay, good. So these relations you can derive, बहुत simple है. Okay, then यही हमको लिखना है. Where what is delta? Delta is angle of deviation. Angle of deviation का मतलब ये होता है by how much amount the light has bent. मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन और इमर्जेंट डायरेक्शन में एंगल मतलब एंगल ऑफ डेविएशन.
फिर हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग कलर के लिए देख रहे हैं. दैट्स इट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, फॉर वायलेट कलर, फॉर येलो कलर. गुड. तो ये हमारा कल लिखना बाकी रह गया था. तो we'll talk about that today and we'll just write it down. Just a minute. Yeah. So we don't need this. We don't need this diagram also. कल हमने ड्रॉ किया था ये डायग्राम. We just have to write down about angle of deviation and other things. Right. So the angle of deviation is minimum for red color, is minimum for red color and maximum for violet color. Okay, just a minute. And maximum for violet color. For other colors, the angles of deviation are intermediate between these extreme values. मतलब बेसिकली येलो, ग्रीन, बाकी कलर्स के लिए इन दोनों के बीच में आएगी. एंड दैट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम डायग्राम. रेड के लिए एंगल ऑफ डेविएशन वाज मिनिमम, वायलेट के लिए मैक्सिमम था, और बाकी सब कलर्स के लिए इन बिटवीन आएगा. दैट वाज वेरी क्लियर. ओके, लेट डेल्टा वी, डेल्टा वाई एंड डेल्टा आर मैं लिख दूंगा यहाँ पे. सो लेट अस से ये है एंगल्स ऑफ डेविएशन, be the angles of deviation for violet, yellow and red color respectively. And mu1 मतलब mu v, mu r and mu y be the refractive index, be the refractive indices for of the prism for these colors, of the prism for these colors. So let me just complete what I am saying. तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे लेट डेल्टा v, डेल्टा y and delta r be the angles of deviation for violet, yellow and red color, and mu v, mu y and mu r be the refractive indices of the prism for these colors, right? So it can be seen that, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिराइव करके बताया, हमने अभी अभी देखा था that I wrote here relation between wavelength, velocity, angles of deviation and refractive indices. What we know is wavelength of red color is greater than wavelength of yellow color, is greater than wavelength of violet color, and velocity for red color inside the prism is greater than velocity for yellow color, is greater than velocity for violet color. Okay, right, good. And what else we can say is angle of deviation for red is less than angle of deviation for yellow, is less than angle of deviation for violet.
and refractive index for red is less than refractive index for yellow is less than refractive index for violet. ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, राइट? दैट्स इट. तो कल का जो हमने टॉपिक लिया था उसमें इतना ही हमारा लिखना बाकी था. This is all that was pending. So we continued today from what we left in the last session, and what we left in the last session was dispersion of light. Dispersion of light बहुत simple concept है. White light, what is the meaning of white light? White light means it has 7 different colors. It has wavelength ranging from 3000 angstrom to 7000 angstrom. हमको white दिखता है, वो white light जब prism में जाएगा तो उस it gets split up into 7 different components. Splitting क्यों होता है? क्योंकि already white light is made up of that colors, okay? तो सारे कलर्स उसमें होते हैं. सिर्फ प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म अलग अलग कलर को अलग अलग एंगल से बेंड करता है, रिफ्रैक्ट करता है. तो जब लाइट बाहर आएगा प्रिज्म से तो यू सी 7 डिफरेंट कलर्स, यू सी अ स्पेक्ट्रम बेसिकली विद योर violet, indigo, blue, orange, red, yellow, something like that. Okay, good, right? So that is all what it does. ऐसा क्यों होता है? Because angle of deviation for red is the minimum. सबसे कम deviate होता है red, तो ज्यादा डेविएट होता है येलो, एंड मैक्सिमम डेविएशन इज फॉर वायलेट. दैट्स इट. सो नाउ विल डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला. So we want to derive what is prism formula. Prism formula. Okay, great. The idea is very simple. Let us take a prism. एक मिनट, पता नहीं क्या हो जाता है इसको. So let us derive prism formula. Okay, so let us take a prism. When I say prism, मतलब हम लोग principal section की बात कर रहे हैं. And I'm gonna draw this little big. We need to specify each thing very properly over here. तो ये principal section का एक side हो गया, ये principal section का दूसरा side हो गया, and this is the base of the prism. This is the base of the prism. Okay, right. Then let us consider a ray of light which is entering, which is incident on one face of the prism. Face बोलने से I'll say one refracting surface. तो what is better is to do, हम लोग एक काम करते हैं कि पहले इसको नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं. ये A, ये B and ये C. तो ये जो एंगल A है, this is refracting angle of the prism. Okay, good. Then as I told you, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट जो है वो, रे ऑफ लाइट जो वो स्ट्रेट जाता. करेक्ट, गुड. बट सिंस वी हैव दिस प्रिज्म, लाइट विल बेंड ओवर हियर. ओके, अब बेंडिंग दिखाने से पहले it is important for us to show normal to the surface. So let us say this is normal to this surface. Right, AB फेस को नॉर्मल. सिमिलरली मैं काम करता हूं, मैं AC फेस को भी नॉर्मल ड्रॉ कर ही लेता हूं. क्यों? आगे समझेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू नीड इट. देन एज आई टोल्ड यू, सिंस देयर इज प्रिज्म, ये जो रे ऑफ लाइट है इट विल बेंड एंड गो लाइक दिस.
ओके, एसी फेस पे, एसी सरफेस पे वापस एक बार रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज लाइट विल नाउ ट्रेवल फ्रॉम denser medium which is medium of the prism, it will go into air, मतलब it will bend away from normal, it is bending away from normal like this, right? okay, तो आइडिया इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है आइडिया यहाँ पे। जब पहला रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब जब लाइट ए बी सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। सेकेंड सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन हुआ तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हुआ। ओके, देन अगेन ऐसा है कि अगर प्रिज्म नहीं होता और अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करते, मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको ये बोलता है कि अगर मैंने रे के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब रे ऐसा जा रहा है, अगर मैं रे के डायरेक्शन को रिवर्स करता हूं तो एग्जैक्टली सेम पाथ वो रे ट्रैवल करेगा, एग्जैक्टली सेम, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो इफ आई अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी और अगर मैंने बोला कि वहां पे प्रिज्म नहीं है, तो ये जो रे है इट विल गो समथिंग लाइक दिस। तो ये जो रे है दिस विल गो समथिंग लाइक दिस। गुड, राइट। सो नाउ इज द टाइम टू गिव नेम्स। थोड़ा नामकरण करना पड़ेगा बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ डिराइव करना है। तो पहले तो मैं डायरेक्शंस स्पेसिफाई कर देता हूँ। देन let us say the perpendicular here to the surface AB is M, this point is D, so MD। ओके, ये पॉइंट को Q बोल देता हूँ, इस पॉइंट को P बोल देता हूँ, इसको मैं R बोल देता हूँ, इसको मैं S बोल देता हूँ। एंड लेट अस से दिस इज N ओवर हियर, एंड लेट अस से दिस इज P डैश, एंड S का अपोजिट H डैश, ऐसा पॉइंट बोल देते हैं। इस पॉइंट को बोल देते हैं E। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। नेवर फॉरगेट, कभी भूलना नहीं कि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मेजर करते हैं, करेक्ट। और ये टोटल एंगल जो है ये वापस I होगा, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर ये टोटल एंगल I है तो विच मीन्स दैट this angle is I minus R1, okay, this angle here is R2, this angle is E, and ये एंगल E है तो ये एंगल भी E होने वाला है टोटल। E मतलब एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो this angle over here is going to be E minus R2, करेक्ट। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था what is angle of deviation, the angle between the original direction, मतलब PP dash original direction है, and the angle between the original direction and the final direction, angle between original direction and final direction is angle of deviation। ओरिजिनल डायरेक्शन PP डैश है, फाइनल डायरेक्शन SS डैश है, इन दोनों में एंगल मतलब ये, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। सो दिस इज द अमाउंट बाय विच लाइट का बेंडिंग हुआ बिकॉज ऑफ प्रिज्म, राइट, करेक्ट। दिस इज द लीस्ट दैट यू शुड बी नोइंग, ओके। मैं रिपीट करने वाला हूं, इनफैक्ट मैं रिपीट कर देता हूं कि व्हाट वी आर स्टडिंग। हमारे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है। प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है ये हमने कल डिफाइन किया है, ओके, वी हैव डिफाइंड व्हाट इज प्रिंसिपल सेक्शन। सो दिस इज आवर प्रिज्म, ओके।
समथिंग लाइक दिस, समझ लेना. Then we had a ray of light which is incident on this face, refracting surface. अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट स्ट्रेट जाता, मतलब प्रिज्म नहीं होता तो रे would have traveled in the direction from PP dash, but because we have prism the light will bend. एंड अगर लाइट का बेंडिंग आपको बताना है तो पहले आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा टू द सरफेस. सो दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, करेक्ट. दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस ओवर हियर, मान लो समथिंग लाइक दिस. ओके, देन ये रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, तो रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग समथिंग लाइक दिस. P से Q, फिर बेंड हो गया, then went to R, and again second refraction. So now the ray of light is going from denser to rarer medium, it will bend away from normal. तो ये away from normal आ गया, right? तो ray of light is going something like this. As I told you, अगर प्रिज्म नहीं होता और अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर मैंने रे के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो रे विल स्टिल ट्रैवल द सेम पाथ. वो भी नहीं समझ में आया तो इसको मैं जब एक्सटेंड कर रहा हूँ, इस लाइन को जो मैं पीछे ले रहा हूँ, मतलब ये आपको फाइनल डायरेक्शन बताता है, दैट्स इट. तो यू कैन से दैट आल्सो. तो एस डैश इज द फाइनल डायरेक्शन. ये एंगल ए है, रिफ्रैक्टिंग एंगल, और ए बी सी ये प्रिंसिपल सेक्शन है. इसको मैं M बोल रहा हूँ, इसको मैं D बोल रहा हूँ, इसको मैं N बोल रहा हूँ. ये एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये एंगल आपका R1 है, ये एंगल आपका R2 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 2, ये आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस है. ये टोटल एंगल भी आपका I आएगा, अल्टरनेट एंगल. तो ये एंगल जो आपका आएगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी I माइनस R, एंड दिस एंगल ओवर हियर इज गोइंग टू बी E माइनस R2. ये R1 है, राइट. और ये एंगल बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन एंड द फाइनल डायरेक्शन इज नथिंग बट डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, हाउ मच लाइट हैज स्पेंट. ओके, so this is all we have drawn so far, right? तो अगर आपको इतना समझा है, समझना क्या है, कुछ है ही नहीं उसमें. रे कैसा जा रहा है वही है, रे आया, बेंड हुआ, वापस बेंड हुआ, बाहर गया. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. सिर्फ हम लोग एंगल्स वगैरह लिख रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, बट इट्स नथिंग एक्चुअली, इट्स सिंपल टास्क. देन बेसिकली टू स्टार्ट ऑफ विथ, हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे ट्रायंगल ई क्यू आर पे. मतलब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है हमको, ई क्यू एंड आर, वी नीड टू फोकस हियर. अब ये जो ई क्यू आर ट्रायंगल है, इसमें जो एंगल है पी डैश ई एस, ये एक्सटीरियर एंगल है, इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ई क्यू आर, correct, right? Good. Then do we know exterior angle theorem? Yes. What is exterior angle theorem? Exterior angle theorem tells us this angle P dash ES is equal to addition of two interior angles. And interior angle कौन सा EQR plus angle ERQ. मतलब एंगल P dash ES is equal to angle EQR plus ERQ. ये exterior angle theorem से आता है. What is angle P dash ES? Angle of deviation delta. What is EQR? I minus R1, and this is E minus R2.
तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस कॉमन R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1. Correct? Good. Then we need to focus on this particular triangle QDR. In triangle QDR, what we can write is, so from ट्राइंगल क्यू डी आर, एक एंगल था R1, दूसरा था R2, प्लस एंगल क्यू डी आर इटसेल्फ इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल QDR इज 180, इक्वेशन नंबर 2. Then we are going to focus on trapezium AQDR, I mean sorry, quadrilateral. Okay, जो भी है, I mean we just have to know, हमको ये पता होना चाहिए that opposite angles in a cyclic quadrilateral. So from quadrilateral, not trapezium, sorry, from quadrilateral AQDR, what you should know is opposite angles of क्वाड्रिलैटरल मतलब QAR, ये एंगल A और ये एंगल D मतलब QDR, इनका एडिशन हमेशा 180 होता है. सो एंगल QDR प्लस एंगल QAR इज इक्वल टू 180. बट QAR इज एंगल ऑफ प्रिज्म A, तो मुझे मिल गया एंगल QDR इज इक्वल टू प्लस A is equal to 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3. तो फ्रॉम 2 and 3 दोनों के राइट हैंड साइड 180 है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए. सो फ्रॉम 2 and 3 what you can write is R1 plus R2 plus angle QDR equal to angle QDR plus A. कैंसल, मतलब R1 plus R2 is equal to A, इक्वेशन नंबर 4. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 and 2 दोनों का एडिशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म. दिस इज व्हाट वी हैव सो फार. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 4, if you remember, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, R1 और R2 आ गया A, मतलब व्हाट वी हैव इज I plus E is equal to delta plus A, equation number 5. Okay, then what happens if I plot angle of deviation delta as a function of angle of incidence? मतलब basically if you want to understand with the help of this figure, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होगा, राइट. हाउ डू वी नो? वी ऑलरेडी नो दिस. ये फॉर्मूला है विच रिलेट्स डेल्टा एंड आई. ओके, तो एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटल है. अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, इट विल रीच ए मिनिमम वैल्यू. ओके, फिर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ डेविएशन वापस बढ़ने लगा, समथिंग लाइक दिस. तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेल्टा की वैल्यू मिनिमम आई, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन, फिर वापस बढ़ेगा, करेक्ट. इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आई इक्वल टू ई हो जाता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब दिस एंगल आई एंड दिस एंगल ई आर इक्वल. इसका मतलब जो रिफ्रैक्टेड
रे है, मतलब ये रे, राइट, फ्रॉम Q to R, ये जो रे है इट इज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। बेस ऑफ प्रिज्म मतलब BC, साइड BC को पैरेलल हो गया। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम। डेल्टा एम भी मिनिमम डेविएशन की एक वैल्यू है, राइट। उस पर्टिकुलर वैल्यू पे I इक्वल टू E, मतलब QR इज पैरेलल टू BC, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। ओके, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और R2 भी इक्वल हो जाएंगे उस केस में, राइट। तो इफ वी नो दिस मच, हमको अगर इतना पता है तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग लिख सकते हैं एट एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू डेल्टा M, I becomes equal to E, ray QR becomes parallel to base of prism BC, and R1 equal to R2 equal to turns out to be, let us say, R. Therefore, अब ये जो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है, इसको अगर इक्वेशन नंबर 4 में डालता हूं मैं, 4 में, तो मुझे मिलेगा R प्लस R इक्वल टू A, मतलब 2R इक्वल टू A, मतलब R इक्वल टू A बाई 2, राइट। ओके, दिस इज व्हाट यू मस्ट नो, इतना आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, I प्लस E इज इक्वल टू डेल्टा प्लस A, तो I प्लस I, क्यों? क्योंकि E और I की वैल्यू इक्वल है, हमने लिखा है। डेल्टा तो डेल्टा M है प्लस A, मतलब यहां से मिल जाएगा 2I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, मतलब I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M बाई 2। तो R की वैल्यू मिल गई और I की वैल्यू मिल गई in terms of refracting angle of the prism. अब why I am doing all this? Because I want to have prism formula. Prism formula is nothing but Snell's law. Snell's law क्या बोलता है? अगर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, राइट, तो it tells us mu1 sin I, angle of incidence in medium 1, is equal to mu2 sin R, angle of refraction, है ना। फिर मैं R1 लिख सकता हूं, फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि mu1 ये 1 है, वो R1 R2 इक्वल टू R है ना, इसलिए आई कैन राइट R और R1 और R2 डजंट मैटर। आप क्या कर सकते हो, आप या तो AB सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, या आप AC सरफेस पे अप्लाई करो, एक ही बात है, क्योंकि AC पे अप्लाई करोगे तो mu2 sin E इक्वल टू, सॉरी, mu1 sin E इक्वल टू mu2 sin R2 आएगा। पर कैसे फर्क पड़ता है? I इक्वल टू E तो बोला है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R भी बोला है, तो डजंट मैटर ना, डजंट मैटर। तो बेसिकली मैं इसलिए सिर्फ ऐसा लिख रहा हूं। ओके, mu1 इज 1 क्योंकि प्रिज्म को एयर में रखा है, sin I तो sin I है, इक्वल टू mu2 sin R1 इज sin R। तो मुझे mu2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म sin I अपॉन sin R मिल गया। बट वेट अ मिनट, हमने ये I के लिए अभी भी डिराइव किया था A प्लस डेल्टा M बाई 2, और R के लिए डिराइव किया था A बाई 2। ये जो फॉर्मूला बना है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्म फॉर्मूला। ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्म फॉर्मूला। मैं वापस रिपीट करने वाला हूं, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ ट्रिक हाउ टू रिमेंबर। तो आई एम गोइंग टू इरेज everything that I have done so far, and we will repeat. Oops, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा कंट्रोल Z नहीं करना है। ओके, गुड, राइट।
इनफ। राइट, तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोला तो वी बेसिकली पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर कोर मेमोरी, हम लोग याद रखने की कोशिश करते हैं। दैट इज वेयर पीपल डोंट डू वेल इन फिजिक्स, क्योंकि याद रखना इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है समझना। हमारे पास एक प्रिज्म है, लाइट एंटर होगा तो वो कुछ एंगल बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात होगी। फिर लाइट बेंड होगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात होगी। करेक्ट। और प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2। मतलब मुझे ये पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ। तो जिसको पहले ही ये पता था कि यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, मतलब म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, दैट इज इटसेल्फ प्रिज्म फॉर्मूला। बस हमको आई और आर इन टर्म्स ऑफ ए एंड डेल्टा लिखना है, दैट्स इट। करेक्ट। तो इफ यू नो दिस, तो आपको पता है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे आई को इन टर्म्स ऑफ ए एंड डेल्टा और आर को इन टर्म्स ऑफ ए लाना है। करेक्ट। मतलब डेल्टा और ए जबरदस्ती का इक्वेशन में लाना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं फिर? तो हम लोग सबसे पहले डेल्टा पे फोकस करेंगे। डेल्टा डेल्टा ये ट्रायंगल ई क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल है। फ्रॉम ट्रायंगल ई क्यू आर, एंगल पी डैश ई एस इज एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी हमको पता है, दैट एंगल पी डैश ई एस इज इक्वल टू एंगल ई क्यू आर प्लस एंगल ई आर क्यू। दिस इज डेल्टा। और एंगल ई क्यू आर इज आई माइनस आर वन प्लस दिस इज ई माइनस आर टू। तो डेल्टा आपके पास आ गया आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट। देन if I see triangle QDR, so from, मतलब ऊपर का ट्राइंगल ले लिया, अभी नीचे का लो। From triangle QDR, what we can say is R1 plus R2 plus angle QDR equal to 180 degree. Therefore R1 plus R2 is equal to 180 minus QDR, या तो फिर it's okay if you can just write it as equation number 2, ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम लोग। देन फ्रॉम क्वाड्रिलैटरल, कौन सा क्वाड्रिलैटरल था? ए क्यू डी आर। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल है ए क्यू डी आर, हमको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स का एडिशन 180 होता है, नॉट इक्वल बट अपोजिट एंगल्स का एडिशन 180 होता है। तो एंगल क्यू डी आर प्लस एंगल क्यू ए आर is equal to 180, but angle QAR is nothing but refracting angle A of the prism। फिर 2 और 3 में राइट हैंड साइड सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगे। तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल QDR इज इक्वल टू एंगल QDR प्लस A। कैंसल कैंसल, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, इक्वेशन नंबर 4। करेक्ट। देन ये इक्वेशन 4 हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा? डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 था तो मैंने लिख दिया ये माइनस ए। तो आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। अभी ए तो फिक्स है, किसी भी प्रिज्म का रिफ्लेक्टिंग एंगल फिक्स होता है। अगर मैं आई चेंज करता हूं तो ई चेंज होता है, मतलब डेल्टा चेंज होता है इन शॉर्ट। तो if I check experimentally, if I plot angle of incidence along x-axis and angle of deviation delta along y-axis, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मिनिमम होगा, फिर वापस से बढ़ने लगेगा। एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू
angle of incidence and angle of emergence becomes equal, this particular value of angle of deviation is called as angle of minimum deviation, क्योंकि कम से कम डेविएशन हुआ उस एंगल पे, that is why it is called as angle of minimum deviation, right? Good. Then what happens at angle of minimum deviation? So at delta is equal to delta m, what happens is I becomes equal to E. That means refracted ray QR becomes parallel to base of prism, which is BC, and R1 equal to R2 equal to R, because these angles of refraction also become equal. Therefore, from equation 4, you can write R1 equal to R and R2 equal to R, and you get R plus R, 2R equal to A, so R equal to A by 2, right? मैं इसको equation number 5 बोलता हूँ. From equation 5, what you will have is I equal to E है, right? So from equation 5 and I equal to E, from equation 4 and R1 equal to R2 equal to R, you get this, and from this you get I plus I equal to delta M plus A. So I equal to A plus delta M by 2. ये आ गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू, और ऊपर आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 6 and 7. Okay, right? Applying Snell's law on surface AB और AC एक ही बात है, as I told you, because I equal to E है, we get mu1 sin I equal to mu2 sin of R1. अगर ये आपने अप्लाई किया AB सरफेस पे, थोड़ा डिटेल लिख देता हूं मैं, तो फॉर सरफेस AB, फॉर सरफेस AC, mu1 sin I इक्वल टू mu2 sin R1. यहाँ पे mu1 sin E इक्वल टू mu2 sin R2. Good. If mu1 is equal to 1, that is for air or vacuum, and we know that for delta equal to delta M, I is equal to E, R1 equal to R2 equal to R. ये हमको ऑलरेडी पता है. Therefore what we will get is mu1 की वैल्यू 1 sin I, mu2 sin R, दोनों केसेस के लिए, for both of this AB and AC surface दोनों के लिए, mu1 की वैल्यू 1 sin I equal to mu2 sin R. R1 और R2 they are R, so एक ही बात है. Therefore mu2, which is refractive index of prism, is sin I by sin R. Therefore mu2 is equal to, but I is nothing but A plus delta M by 2 upon R is A by 2. This is nothing but PRISM formula. Correct? Right. So what we have done today is, by the way, we don't have sufficient time to write everything about PRISM formula. So what I'm going to do is, ये तो रहेगा, ये तो पूरा रफ वर्क है आपके पास, ये रहेगा. Okay, this is going to be with you in the form of notes. Additionally,
additional proper notes will be attached to this file for PRISM formula. मतलब ये सिर्फ मैथमेटिकल मैंने कर, ये भी प्रॉपर ही है, इट इज नॉट इम्प्रॉपर, ओके, बट यहाँ पे हमने सिर्फ थियरी लिखा नहीं कि कौन सा एंगल क्या है, कुछ भी हमने बताया नहीं. लेट PQ इज द इंसिडेंट रे, लेट QR इज द रिफ्रैक्टेड रे, ऐसा सब लिखना पड़ेगा हमको, करना पड़ता है, ओके. तो दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू राइट, मेक अ प्रॉपर theoretical notes and इस पेज के बाद लगा दूंगा मैं and then I will upload. Okay, wait. I had to make some changes in yesterday's notes also, so that will also be done together. So what we have done today is, आज हमने dispersion के आगे continue किया था. Dispersion of light क्या होता है कि white light enters and then we get a spectrum, मतलब white light के 7 components हमको दिखते हैं. ओके ऐसा क्यों होता है, मैंने कल बताया था आपको, मैं वापस बता रहा हूँ. होता क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डेफिनेशन इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. ओके, जब मैं बोलता हूँ स्पीड ऑफ लाइट, आई मीन स्पीड ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ. तो वो होता है c बाई वी, v होता है n लैम्बडा. मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बाय डेफिनेशन इज दिस. हर एक कलर का वेवलेंथ अलग हुआ, मतलब हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड टू एंगल ऑफ डेविएशन, वो हम लोग प्रिज्म फार्मूला अप्लाई करके आगे देखने वाले हैं हम लोग. बाय द वे, टू टेल यू, दिस इज द रिलेशन. ओके, so angle of deviation is also related to refractive index. मतलब अगर हर एक कलर का वेवलेंथ अलग है तो हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है. इवन दो मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज सेम, हमने एक बार प्रिज्म बना लिया, हम मटेरियल नहीं चेंज कर रहे हैं, बट स्टिल फॉर डिफरेंट कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज डिफरेंट. दैट मींस एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब दैट मींस द अमाउंट बाय व्हिच ईच कलर इज रिफ्रैक्टेड बाय द प्रिज्म इज डिफरेंट, राइट. इसका मतलब रेड कलर का बेंडिंग कम होगा, डेविएशन कम होगा, येलो का थोड़ा ज़्यादा होगा और वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होगा. तो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर. वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन येलो, दैट इज ग्रेटर देन वॉयलेट, and deviation of red is less than yellow and it is less than violet. So violet is the maximum deviated color, right? Then we started with prism formula today. Prism formula is nothing but it is Snell's law applied to one of the two refracting surfaces, या फिर दोनों को ही अप्लाई किया, doesn't matter, under special condition. Special condition क्या था, that prism formula is Snell's law but under the condition of minimum deviation. तो to explain or to derive prism formula, हमने PQ एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट लिया. ओके, राइट. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I. Because the light is traveling from rarer to denser medium, by the way ये first medium है mu1, ये glass medium है prism का mu2. Because the light is traveling from rarer to denser medium, the light will bend towards normal. तो towards normal bend हुआ तो QR is refracted ray. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और R2 आ गया यहाँ पे, करेक्ट. वापस से the ray of light is traveling from medium 2 and it is going into air again. So it is going from denser to rarer, it will bend away from normal. So RS is moving away from normal. तो ये emerge हुआ, emerge मतलब बाहर आ गया, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एमर्जेंस E विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल जो एंगल है. अगर मैं ओरिजिनल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन को एक्सटेंड करता हूँ, मतलब P डैश और SS डैश जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है, तो दिस एंगल इज टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब फाइनली कितने एंगल से बेंड हुआ रे.
करेक्ट। एंड ऑल्सो ये जो एंगल है यहाँ पे ई क्यू आर और ई आर क्यू, दे आर I minus R1 and E minus R2 रिस्पेक्टिवली। फिर डिराइव करने के लिए तुमको तीन चीज याद रखनी है बस। पहला, ट्राइंगल ई क्यू आर उठाओ, एक्सट्रेट एंगल थ्योरम लगाओ, सिंपल। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, ये एक्सट्रेट एंगल थ्योरम हमने अप्लाई किया। हो गया, ये पहली चीज। सी हाउ डू यू रिमेंबर थिंग्स। टेक ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल, मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ, टेक अपर ट्राइंगल। फिर याद रहता है, अरे वो नाम कुछ भी दिया ना, अपर ट्राइंगल मतलब ये ऊपर का ट्राइंगल। टेक अपर ट्राइंगल, अप्लाई एक्सट्रेट एंगल थ्योरम, राइट, गुड। टेक लोअर ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल क्यू डी आर, apply basic geometry, sum of angles of triangle is 180. Then take quadrilateral a q dr, क्यों लिया ये, मुझे एंगल ए लाना है, जबरदस्ती लाना है इक्वेशन में, करेक्ट। क्यों, हमको पता होता है ना, हम प्रिज्म खरीदते तो पता होता है इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री, इसका 20 डिग्री, जबरदस्ती लाना है हमको। तो बस ये तीन है, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, दैट्स इट। ये तीन चीजें याद रह गई अगर आपको, तो देन प्रिज्म फॉर्मूला इज नथिंग फॉर यू। स्नेल्स लॉ, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। स्नेल्स लॉ, ओके। तो स्नेल्स लॉ आखिरी में अप्लाई करते हैं हम लोग, इसलिए उल्टा ऑर्डर हो गया। अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्नेल्स लॉ, खत्म। और बीच में आप मिनिमम डेविएशन की बात करते हो, राइट। तो ये सारे इक्वेशन हमने अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल यूज करके बना लिए, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5। फिर हमने बात की, अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया तो एंगल ऑफ डेविएशन के साथ क्या होगा, राइट। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन जो है कम होता जाएगा, एक लेवल तक कम होगा, एंड देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन। तो it will reduce up to this point and then it starts increasing again। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है एंगल ऑफ डेविएशन की, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इस पे क्या हो रहा है, आई इक्वल टू ई, मतलब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर जो है ये बेस ऑफ द प्रिज्म को पैरेलल हो जाता है, मतलब क्या हो रहा है, आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर हो रहा है। फिर ये आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर, ये इक्वेशन नंबर 4 में डाल दो, आर इक्वल टू ए बाई टू। आई इक्वल टू ई, ये इक्वेशन नंबर 5 में डाल दो, आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। देन स्नेल्स लॉ, तो मिल गया आपको, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला, दिस इज हाउ यू derive it, okay, good। So that's it for the day, we will continue here onwards in the next session।